Okay, ji, Assalamu alaikum. I am Ulad Salim and you're watching Not So Famous की एक और एपिसोड। बट आज की जो एपिसोड है वो नॉट सो फेमस के साथ नहीं है, एक फेमस पर्सनालिटी के साथ है। ही इज़ वेरी फेमस डूइंग, और जहाँ पे ये दुबई में है, चाहे इंडिया में है। और आप जब इनके फॉलोवर्स ना भी देखें तो इनके काम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने फेमस हैं और कितने इनकी। और फेमस सिर्फ एज एन नॉट फेमस, बट इनकी जो जर्नी है वो वाकई में बहुत इंस्पायरिंग है। और बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी जर्नी से बोर हो जाते हैं, बट दिस जर्नी इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंस्पायरिंग, बिकॉज यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स भी मिलेगा, यहाँ पे आपको फैशन भी मिलेगा, यहाँ पे आपको बिजनेस भी मिलेगा, यहाँ पे आपको प्रोडक्शन भी मिलेगी एंड डिफरेंट चीजें हैं। वन मैन बट different sides. Very interesting personality, Fahad Kidwai. Many of you knows him, but if you don't know him, let me tell you one thing. He's a producer, he's a show director, he's a fashion designer, he's an investor, trainer, mentor, business advisor, F&B consultant, and so many things. आप कैसे हैं और आप मुझे बताएंगे कि इतना सब इतनी यंग एज में कैसे कर लिया आपने? Hello, Assalamu alaikum, Oais. वालेकुम अस्सलाम। First of all, I would like to say कि आप जो कर रहे हैं, आपने जो बात की, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं और काफी सारे हैं, मतलब in this field when we are specifically going digital, there are a lot many people coming out, young talents हैं जो आ रहे हैं मार्केट के अंदर. So it is the responsibility of the fraternity, whoever is involved, जो भी इस fraternity का हिस्सा है, चाहे पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो या कहीं पर भी ग्लोबली, उनकी एक ऑडियंस है या उनकी कोई पहचान है या उन्होंने काम किया है. इट इज देयर वेरी राइट फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस इंडस्ट्री, फॉर द फ्यूचर ऑफ देयर इंडस्ट्री टू इंटरैक्ट विद द अपकमिंग टैलेंट. क्योंकि इफ दैट अगर वो नहीं होता है तो फिर the entire essence of having you be a part of it is lost. Like अगर मैं एक इंडस्ट्री में हूँ, मान लेते हैं let's take fashion as my passion. So fashion में अगर मैं कुछ कर रहा हूँ और मैंने काफी चीजें एक्सपीरियंस की, मैं हमेशा से अपने आप को एक बात बोलता हूँ आज कि काश कोई ऐसा होता मेरी तरह जो मुझे बता पाता कि चीजें एक्चुअल में कैसे चलती हैं. और उस वजह से काफी सारी ऐसी गलतियां जो मैंने की हैं और उससे जो सीखा है, जो सीख मिली है, वो शायद वो सीख भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी एक वे में, लेकिन अगर वो होता तो काफी नुकसान नहीं होता. तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी कोई भी इंडस्ट्री में हो, दे नीड टू हेल्प द पीपल हु आर कमिंग आउट इन दैट इंडस्ट्री. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बात रही लाइफ की और कैसे at the age of 26 how did I do this. To be honest, अगर देखा जाए, yes there are some sacrifices involved. मैं ये नहीं कहूँगा sacrifices नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि मैंने enjoy नहीं किया. I enjoyed. The only thing that led me to be who I am today is consistent efforts, not hard work. Because hard work बहुत लोग करते हैं, but creating value while working, which I would like to call smart work, is more important. बात शुरू होती है काफी साल पहले. In when I was a young student, I was studying. I have a twin brother. His name is Ahad Kidwai. So Ahad was always up there in sports, athletics, academics. He used to be the topper in academics, and he used to be the gold medalist in 100-meter sprint. 100-meter sprint is like the king of the athletic track. अगर events की बात, अगर individual events की बात करें athletics में, मैं हमेशा से पढ़ाई में I was above average. I used to get about 80-85 percentile. And in sports, because I did not find my actual sport, I used to always come third or fourth in 100 meters, 200 meters, whatever it was. लेकिन ये सब कब चेंज हुआ? ये सब तब चेंज हुआ when I came in 9th standard. 9th standard में क्या हुआ? I was of the age wherein I could
participate in a sport called high jump in athletics. The first year that I participated in high jump, I got selected for the national athletic meet. I was the first person from here to represent UAE as a country in the national athletic meet in India that happens every year. उस साल Ahad was not able to make it because of an injury. तो हुआ क्या कि वो एंटायर बाजी पलट गई. लेकिन अब हम लोग जुड़वा भाई थे तो उस वजह से एक दुख भी था. खैर, जब मैं पहली नेशनल एथलेटिक मीट गया इंडिया, दुबई से इंडिया गया था, इट वाज इन अ प्लेस कॉल्ड गुजरात महसाना. वहां पर मैं हाई जंप में 8th आया. आई गॉट द 8th पोजीशन. और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जब आपका रिजल्ट शीट आता है, फाइनल शीट, तो दे ओनली मेंशन 10 पोजीशंस. 10th के बाद वो मेंशन ही नहीं करते. तो मेरे लिए उस टाइम पे 9th स्टैंडर्ड में सबसे बड़ी बात क्या थी कि मेरा लिस्ट फाइनल रिजल्ट्स में आ गया एज 8th पोजीशन. वो पोजीशन मिल गई एक. उससे मेरा हौसला बढ़ा. आई स्टार्टेड ट्रेनिंग अ लॉट इन हाई जंप. बट विद एंड माय मॉम एंड डैड, मतलब अम्मी अब्बू ने बहुत सपोर्ट किया था इस मामले में. इस वजह से मैं अपना करियर इन एथलेटिक्स और पढ़ाई में दोनों में ध्यान देने लगा. लेकिन एथलेटिक्स के साथ दूसरी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थी, in terms of robotics, in terms of annual day events, in terms of creating that entire atmosphere, in terms of acting, in terms of even going ahead and in some regard choreographing dances and stuff. तो इन सब में भी हिस्सा लेता था मैं. आई नेवर यूज्ड टू. मेरा एक मकसद था कि जब तक आप किसी चीज को ट्राई नहीं करें, आपको नहीं पता चलेगा क्या आप इस चीज में अच्छे हैं या बुरे हैं. और वो चीज मुझे हाई जंप ने सिखाई थी. तो अगले साल क्या हुआ, हम लोग जयपुर गए. आई अगेन गॉट सेलेक्टेड फॉर द नेशनल एथलेटिक मीट. दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वन अ नेशनल मेडल. आई केम सेकंड in the under 16 category at a height of 1.76. The first position, the gold medalist was also from Doha, Qatar. So first position went to Qatar, second position went to UAE, and third position went to Chennai from India. Though the first and second position was a tie, लेकिन हाई जंप में क्या होता है, जो अगर आप सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर करें और दूसरे बंदे ने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, तो दैट्स हाउ दे डिफाइन फर्स्ट एंड सेकंड. फिर उसके बाद once I got the second position, I got the silver national athletic medal. हुआ क्या कि जब मैं वापस आया तो मेडल जीतना नेशनल एथलेटिक मीट में यूएई के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि यूएई में इतना ज्यादा टैलेंट नहीं था उस टाइम पे, और इंडिया में तो आपको पता ही है कि टैलेंट क्या चीज होती है. तो फिर वहां से बिकॉज ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ प्रेस एंड दिस एंड दैट एंड लिटिल बिट ऑफ फेम, ये जो प्राइड होती है एक चीज, जो आपको लगता है कि हाँ अब मैं हूं कुछ, वो बहुत बुरी चीज होती है. वो आपके पूरे हुनर को मार देती है. सो द सेकेंड टाइम इतना ज्यादा फोकस नहीं किया था जितना मैंने पहले साल किया था आफ्टर गेटिंग 8th. तो द नेक्स्ट एथलेटिक मीट मुझे क्या मिला, आई केम 4th. दो माय परफॉर्मेंस वाज एट 1.83 meters, however I still came 4th. पर्सनल बेस्ट था, लेकिन I still came 4th and I couldn't do anything about it. वहां पे मैं सीखा कि चाहे कुछ भी आप अचीव करें, हमेशा ये याद रखें कि दुनिया के सामने आप स्टिल कंपटीशन में, और कहीं ना कहीं कोई और है जो आपसे ज्यादा किसी भी वक्त उस चीज में डेडिकेशन दे रहा है. और चाहे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उस बंदे के पास आप जितनी फैसिलिटीज नहीं हो, तब भी वो उससे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं. तो उस टाइम पे मुझे ये रियलाइज हुआ, और फिर मैंने जी लगाकर कोशिश की. जब मैंने कोशिश शुरू की तो आहद ने भी कोशिश शुरू की. और फिर जो हम लोग का आखिरी साल था, when we went to the national athletic meet so the third athletic meet was in Cochin, Jawaharlal Nehru Stadium, India. The last athletic meet, national athletic meet that I attended was in Meerut, India.
Meerut, UP. There, I won the first national gold medal in high jump at a height of 1.86 meters. Qatar, the same guy came second, again at 1.86, but this time I cleared it first. तो वो मेरा सेकंड नेशनल मेडल था जब मैं गोल्ड हाई जंप में जीता. और उसी साल सबसे बड़ी बात ये थी कि हम लोग की जो रिले टीम थी मैं उसमें भी शामिल था. तो जितने भी सबसे फास्ट रनर्स थे, Ahad was number 1 at 10.4 seconds in terms of 100 meters. There was another guy called Zalon Fernandez. He was running at 10.8. There was Nishant Pethroj from UAE who was running at 10.9, and I was running at approximately 10.98, 11 seconds. But for me, माशाल्लाह 4 into 100 relay was the second event in regards to high jump. तो जब मुझे गोल्ड मेडल ऑलरेडी उस नेशनल एथलेटिक मीट, जो लास्ट नेशनल एथलेटिक मीट थी, वो मुझे मिल गया था. दैट वाज माय सेकंड नेशनल मेडल थ्रू आउट. फिर हम लोग ने वी वेंट टू इन अ फोटो फिनिश. जब रिजल्ट्स आए तो फोटो फिनिश में वी वन द सिल्वर in the under 19 category. So under 19 category, high jump gold, that meet I won, which was an individual event. And then in the team event we won आपका silver. तो ऐसे मुझे 3 national medal मिल गया. And then I started going ahead and playing for Dubai Police Academy. वहां पर हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई. उसके बाद कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स की बात होने लगी, जहां पर यूएई नेशनल एथलेटिक फेडरेशन ने हम लोग को ये बताया था कि you need to change your nationality in order to participate as a person from UAE. But then na ki UAE supports dual nationality nor India. Then I said, me and Ahad asked ourselves, like, हम लोग क्यों करें ये, हम लोग क्यों जाएं इस चीज में कि हम दोनों मतलब why would we need a visa to go to India? हम लोग इंडियन हैं तो रहेंगे इंडिया. तो उसी बात पे हम लोग ने डिसाइड की कि हम लोग इंडिया जाते हैं और अपना अंडरग्रेड करते हैं. देहरादून में एक जगह है मसूरी करके. मसूरी was a very close thing to our heart only because of the serenity around. वहां पर कॉलेज, जहां पर जनवरी फरवरी में स्नो गिरती है, माउंटेन्स का व्यू, हॉस्टल में रहना, डिफरेंट इंडिया का फ्रीडम, that all excited us. वैसे तो हम लोग कहीं भी जा सकते थे दुनिया में, we were privileged, but हम लोग ने चूज किया था DIT और IMS. I was in IMS and Ahad was in DIT. We started from zero in athletics, which is district, फिर हम लोग का आया zonal, फिर हम लोग का आया state के बाद Indian team हम लोग की qualification आ गई second day of me qualifying in the Indian camp with Ahad. So 4 into 100 नाम आ गया, high jump में नाम आ गया, बस मेरे लिए इतना काफी था. और Ahad का 100s 200s और 4 into 100s में आ गया था. My personal best at that point of time was 1.98, and officially and unofficially it was 2.01, which was a very big thing for me back then. Second, जिस दिन नाम आया इंडियन कैंप में, उस सेकेंड डे थ्रू स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेकेंड डे I was standing at a place in front of my friend's bike and out of the college. वहां पर देहरादून में मैगी पॉइंट्स होते हैं, काफी हिल स्टेशन है ना, इसलिए एक गाड़ी आई और अप्रोक्सीमेटली 110 या 120 पे उसने मुझे मारा. मैंने ये देखा कि the first thing after the car hit me, it was in a matter of seconds, I saw my leg was displaced completely. And which leg? My right leg, not my left leg. My right leg is my power leg, which I use for jumping. And एक second के अंदर I saw my entire athletic career, जो मेरी पूरी ड्रीम थी बचपन से. मेरे पास और कुछ नहीं था. हाँ, पढ़ाई थी, लेकिन मेरा मेन फोकस एज अ चाइल्ड, यू नीड टू अंडरस्टैंड, वाज एथलेटिक्स. वो एक चुटकी में, एक सेकंड में मुझसे छीन लिया गया. फिर आप ये सोचिए, उस टाइम पे एक 18 साल का बच्चा जिसका पूरा ड्रीम एक सेकंड में छीन लिया जाता है, वो
क्या सोचता है फिर, क्या करेगा वो? 1.5 साल बिस्तर पे, 1.5 साल बिस्तर पे हॉस्पिटल के, उसके बाद फिजियोथेरेपी के सेशंस, ये वो 4-5 ऑपरेशन। मैं एक बार उसके बाद, जबकि अम्मी अबू ने मना किया, आहद ने भी मना किया कि तुम वापस खेलने नहीं जाना, मैं तब भी गया। आई स्टिल वन द गोल्ड इन डिस्ट्रिक्ट्स। लेकिन वो बोलते हैं ना, जो खुदा ने दिया आपको वो कोई और दे नहीं सकता। तो उसमें हुआ क्या एट द एंड, कि मुझे गोल्ड मेडल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिल गया, लेकिन in order to jump at that level, in order to participate in international events as an athlete, it wasn't enough. Qualify नहीं हो पाया हमें। That is where I realized one thing. पापा हमेशा कहते थे, अगर किसी चीज में कुछ भी काम कर रहे हो, अगर अव्वल नहीं आते तो उस चीज का फायदा नहीं है। पार्टिसिपेशन हर चीज में अच्छा है, पार्टिसिपेट करते रहो, एक्सपीरियंस गेन करते रहो, लेकिन पार्टिसिपेशन उस मकसद से होना है कि सीख मिले और उस सीख से आप अव्वल आओ। You need to come first, otherwise there isn't because nobody remembers the person who came second. हर कोई जानता है मून पे किसने पहला कदम रखा, दूसरा बंदे का नाम कोई जानता ही नहीं। क्यों? क्योंकि पहला जो है वो पहला होता है। तो अब मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। पढ़ाई में I taken my subjects. I was doing BBA. For me, entrepreneurship, marketing, economics, all of this, human resource, it was my liking. Accountancy, this is something that nobody could have ever taken away from me, and I was very comfortable in giving this. मैंने सोचा कि let me get into fashion as a model, because I had the height. I was 6'1". I'm still 6'1". and physiotherapy और इन सब चीजों के बाद मैंने काफी अच्छी, मतलब अपने आप को फिट कर लिया था in terms of a model, not as a fitness model, as a ramp model. That's where I started, and I was the first one from my university to win a very big competition called Thomso in IIT Roorkee, India. So I was the first Mr. Thomso from Dehradun as a city. फिर वहां से I went to win 12 titles in northern India. Then I realized कि नहीं, I do not want to be a model anymore. I want to do something far bigger than this. That's when I got into choreography, teaching models how to walk, telling them, going into competitions, started doing it for Vogue India, Thomso, Lakme Fashion Week, so many other places where I started training. In the starting, I was participating as well as training, but later on, I just got into training as a choreographer. Then I came to be a show director. Producer नहीं बना था तब तक। फिर जब मेरा कोर्स खत्म हुआ, I decided to come to Dubai. When I came to Dubai, I made sure 110% I start from zero, because जो India market थी वो यहाँ पर नहीं थी दुबई में. Dubai is a new market altogether. So I started from zero again. Free में training lessons, grooming, styling, ramp walk and modeling के workshops and trainings free में लड़कों और लड़कियों को दे रहा था स्कूल के. MET, Manipal University, Dubai, MET University, Dubai, BITS Pilani, Dubai, you can name it, Murdoch, Wollongong, all of these universities. फिर धीरे धीरे नाम आने लगा. उससे क्या हुआ, एक टॉप एजेंसी थी, डीवा मॉडलिंग एजेंसी, जो स्टार हंट करती थी, which was the biggest pageant for public, for newcomers, for new freshers, done by Dubai Outlet Mall. तो उन्होंने मुझे दे दिया after hearing my story. That is where everything changed. वहां से जितने भी शोज होते रहे, सारे क्लाइंट्स आते रहे. फैशन में I made my name over there. But since the very beginning, I told you one thing, सिर्फ athletics नहीं कर रहा था मैं. I was into all sorts of extracurricular activities. तो events में पार्ट लेना, हर चीज सीखना जीरो से. कॉलेज में था, अगर कॉलेज का फेस्ट हो रहा है तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा साउंड सिस्टम है, स्टेज कौन कैसे सेटअप कर रहा है, कॉस्ट क्या है, ड्रेसिंग कहाँ लग रही है, लाइटिंग कहाँ से जा रही है, इक्विपमेंट क्या यूज हो रहा है उसमें, AV प्लस साउंड, एवरीथिंग, ऑडियो विजुअल प्लस द एंटायर setting arrangements, security arrangements, logistics, everything from zero. I learned. My first event was South Indian International Movie Awards when I was again in 10th standard in school over here in Dubai. तो वो हमेशा मैंने खोया नहीं, चाहे कुछ भी हो,
कोई भी ऐसा इवेंट हो, आई हैड टू मेक श्योर दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ इट एंड आई लर्न द industry. I learned every basics of it. That is what, after I proved myself as a show director over here in Dubai, I set up my Fahad Kidwai Productions. And what helped me to set this up? The very fact that I had that knowledge इतने सालों से जो मैंने सीखा था, और उसके बाद what enabled me और ज़्यादा to go in that way, क्योंकि मैं already shows कर रहा था और मैं जो चीजें यहाँ पर तैयार हो कर रहा था, जैसे प्रोडक्शन का सामान हो गया, एवी, ये सब कहाँ से आ रहा था? ये किसी और से आ रहा था। मैंने बोला सो मैं क्यों नहीं दे सकता ये, और जो मैं दूंगा मुझे पता होगा उसकी क्वालिटी क्या होगी और उस वजह से मेरा शो और अच्छा होगा। तो आई गॉट इनटू द प्रोडक्शन स्पेस. आई पार्टनर्ड अप विद वन ऑफ माय वेरी ओल्ड फ्रेंड्स, Fayaz Mohammed, who runs Wild Planet Entertainment in Dubai, and that's how we started. That is the story of the production. अब मैं आता हूँ करियर के हिसाब से. करियर में जब मैं पहली बार जॉब तो कर ही रहा था, मतलब इंटर्नशिप, जॉब्स, फ्रीलांसिंग, ये तो आई टोल्ड यू सिंस 10th I was doing in events and stuff. I was learning the skill. But in my first job I created, it was for jobandgulf.com, wherein I created the DIAC career fair. And I got this to them. It did brilliantly. लेकिन कुछ कहा सुनी हुई थी bosses, and I left it. I started recruiting for other people, for other companies like IBM and Oracle. वहां से कुछ पैसे बनाए, रिक्रूटमेंट कंपनी सेटअप की. तो हमेशा मेरा एक फंडा था, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, स्कूल में हो, कहीं पर भी हो, अगर आपको कुछ बनना है ना, सिर्फ कॉलेज जाके या स्कूल जाके पढ़ाई करके नहीं होगा. आपको जमीन पर जाना है. You have to go to the ground and you have to see how the industry functions and works. क्योंकि वो जो स्किल है with your पढ़ाई वो काम आएगा. वो करने लगा from day one. तो ऐसे ऐसे देखते देखते जॉब के साथ फ्रीलांसिंग शुरू हुई. तो अभी मेरी प्रोडक्शन कंपनी सेटअप, मेरा पूरा फोकस प्रोडक्शन कंपनी पे था प्लस माय जॉब. तो प्रोडक्शन कंपनी का जब प्रोसेस साइकिल कंप्लीट हुआ, then I left it, assigned someone to it. Now that entire cycle is being managed. I don't have to think too much about it. I just have to sign new contracts. Then I got into freelancing of HR recruitment. Once I developed a certain clientele over there, I formed InSync Advisors, which was my second company. Developed the process cycle. अब 2 company चल रही with the process cycle. Now I thought of the third. Third, I got into Two Brothers Entertainment LLC, which now is clubbed. Recently हम लोग ने उसको क्लब किया है फहद किदवई प्रोडक्शंस के साथ, जहां पर म्यूजिक वीडियोस ये सब हम लोग शूट करते हैं. लेकिन मेरा कहने का, और अभी चौथा भी अभी हम लोग ने अप्रोक्सीमेटली 2 साल पहले शुरू किया था. इट्स कॉल्ड इनसाइट सॉल्यूशंस, जहां पर इट्स अ जनरल ट्रेडिंग कंपनी वेयर वी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एल्युमिनियम, एक्सट्रूडेड एल्युमिनियम. तो ये 4 कंपनी जब चलने लगी, उसके साथ मुझे एक नई जॉब मिली तलाबाद डिलीवरी हीरो में. द सेम कंपनी दैट ओन्स जोमैटो, फूड पैंडा, ओला इंडिया, हंगर स्टेशन, ये जितनी भी कंपनीज हैं, इट वाज अ फूड ऑनलाइन एग्रीगेट. आप जाके गूगल कर सकते हैं डिलीवरी हीरो. वहां पर 4 साल काम किया एज ए सीनियर अकाउंट मैनेजर. वहां पर मैंने बहुत सीखा. क्या सीखा? हाउ टू डील एंड लर्न द ट्रू एसेंस ऑफ नेगोशिएशन, बिकॉज क्लाइंट्स बहुत टफ थे. कौन थे क्लाइंट्स? सारे रेस्टोरेंट्स थे. और वहां पर आई ऑल्सो टर्न आउट टू बी अ F&B consultant. And that is what we attributed in InSync Advisors later as a business consultancy. So everything had a reason. और वहां पर मुझे समझ में आया कि आपका नेटवर्क जो है is actually your network, because when you're interacting with restaurant owners, they are of various diversities. Because restaurant owner सिर्फ restaurant owner नहीं है, उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ भी किया है. तो ये सब देखते 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 आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं. तो सबसे बड़ी बात अगर मुझे बोलनी हो इस टाइम पे, मैं क्या बोलूं? अब नाउ आई इवन रिजाइन फ्रॉम डिलीवरी हीरो. मैं अपनी बात पे आऊंगा. अभी मैं काम करता हूँ फॉर एमपे. आई हेड द सेल्स डिपार्टमेंट ओवर देयर. It is a part of Dubai Economic Department, which is a part of Dubai government, directly under the patronage of His Highness Sheikh Mohammed.
तो सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी सीख यहाँ से क्या मिली कि आज मैं इसलिए यहाँ खड़ा हूं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो एक्सीडेंट हुआ। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर एक्सीडेंट या किसी किसी की लाइफ में कोई भी डाउनफॉल आती है, इसका ये मतलब नहीं लाइफ खत्म है। बस एक चीज होती है जिसे कहते हैं शुक्र अदा करना। तो मेरी लाइफ की 3 सबसे वैल्यूएबल चीजें क्या हैं? पहली, गिव बैक विदाउट एक्सपेक्टेशंस। अब दिल खोलकर वापस ह्यूमैनिटी को दो, लेकिन आप एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि अगर आप एक्सपेक्ट करोगे तो उसे हम लोग ट्रेड कहते हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं कि आपने दिया और आपको आपका एक्सपेक्टेशन मिल गया। ये क्या हुआ? ट्रांजैक्शन हुआ। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, गिव बैक इन वॉट एवर रिगार्ड यू कैन। एंड गिविंग बैक डज नॉट मीन कि फाइनेंशियली करो। आपके पास कुछ नहीं है, आप किसी की सुन लो, बस उनके लिए कान बनो। और वो चीज अगर उनके दिमाग में या दिल में कुछ बैठी है, अगर उन्होंने निकाला, उनकी लाइफ में कितना बदलाव आएगा आपको ये नहीं पता। तो आप कुछ भी करो, गिव बैक करो, लेकिन एक्सपेक्टेशन मत रखो किसी चीज का। दूसरी, तो पहला पॉइंट, गिव बैक विदाउट एक्सपेक्टेशन। सेकेंड पॉइंट, गो अहेड एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ व्हेन यू गिविंग बैक। क्योंकि दुनिया वो दुनिया नहीं रही जहां पर सबको आप ट्रस्ट कर सकते थे एक सेकंड में। नहीं, जब आप गिव बैक भी कर रहे हो, लोग आपको यूज करेंगे, आपको नेगेटिव, आपका आपके साथ गलत करेंगे। तो आप उस चीज के लिए क्या करेंगे? आप उस चीज के लिए अपने आप को बचाएं। यू विल प्रोटेक्ट योरसेल्फ। ये मेरा सेकंड पॉइंट है। और थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, कि अगर आपने अपने आप को बचाया, प्रोटेक्ट किया, उसके बाद भी कोई कुछ करके निकल जाता है, उसे जाने दो, उसके पीछे मत भागो। क्योंकि आप ना ना आप अपना पास बदल सकते हैं, और ना आप अपना फ्यूचर देख सकते हैं। आप इंसान के तौर पे क्या कर सकते हैं? अपने प्रेजेंट में अपना डिसीजन ले सकते हैं, करेक्ट? तो उसी ये डिसीजन होना चाहिए कि आप उसे जाने दिए। क्योंकि रो के फायदा नहीं और सोच के फायदा नहीं, तो कर के फायदा है। करना क्या है? भूलना है। भूल गए आप? अगर उस बंदे के साथ रिवेंज लेना भी चाहते हैं, आप ये बताइए, अल्लाह सुब्हान व तआला जो ऊपर बैठे हैं, अगर आपने उनके ऊपर छोड़ा तो उनका वो जो उनका जो एक मुख्तलिफ डिसीजन या वो जो उस बंदे के साथ करेंगे, कैन इट बी कंपेयर टू व्हाट यू विल डू टू हिम और हर? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये बात, जो वो उनके लिए उनके साथ करेंगे, वो तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि आप the way they will get what they did, for what they did, the punishment they will get, you cannot even imagine. तो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आप छोड़ दिए अल्लाह सुब्हान ताला के ऊपर, आप अपनी रास्ते से चलिए। लेकिन जो भी आपने किया है, ये गिव बैक विदाउट एक्सपेक्टेशंस एंड प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ एंड लेटिंग पीपल गो ऑफ एंड कीपिंग द बिलीफ कि अल्लाह सुब्हान ताला देख रहा है सब कुछ, और जिसको जो मिलना है वो मिलेगा। एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, 5 साल, 10 साल के अंदर आपको मिलेगा। ये मेरी बिलीफ है और मैं इस चीज पे कायम हूं। और अगर उस एक्सीडेंट के बाद मुझे कुछ मिला है, सिर्फ इस बिलीफ की वजह से मिला है, वरना नहीं मिलता। वो बिलीफ, वो ईमान होना जरूरी है। बस खत्म बात वहीं पर। बस और कुछ सोचना ही नहीं है। मेहनत है, लेकिन मेहनत सही तरीके से है, स्मार्ट वर्क विद दीज बिलीव्स। इट इज सच अ कॉम्बिनेशन कि एनीवन कैन गो टू एनीथिंग। आपके दिमाग में कोई बात आई, द मैटर ऑफ फैक्ट दैट इट इज इन योर हेड is means that you can do it. If you think it, you can do it.
अगर दिमाग में नहीं आती ना ये बात, तो आप उस चीज को कर ही नहीं सकते क्योंकि दिमाग में ही नहीं है। लेकिन अगर आ गई दिमाग में, इट इज पॉसिबल, एज सिंपल एज दिस। ये मेरा मानना है। विद दिस बिलीफ, दिस ईमान, इन द राइचियस वे, विद स्मार्ट वर्क, आप कुछ भी सोचो, इट्स पॉसिबल। लोग हमेशा ये चीज पूछेंगे आपसे कि फहद यार क्यों कर रहे हो, ये भी है, ये भी है, ये भी है, एथलीट थे, ये बन गए, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, ये क्यों कर रहे हो यार, आराम कर लो, ये एक्स्ट्रा क्यों कर रहे हो, कहीं जा रहे हो तो एक्स्ट्रा ड्रेसअप क्यों हो रहे हो, कहीं जा रहे हो तो इतना एक हफ्ते में 2 बार बाल क्यों कटाते हो, इतना ज्यादा वो why is concise, why is so precise, why do you take that extra effort when nobody else does? ये पूछा जाता है कि आप, क्वेश्चन ये है लोगों से जो आता है, आप क्यों कर रहे हो सर। कुछ सालों बाद आप खुद नोट करेंगे क्वेश्चंस क्या होंगे, ये आपने कैसे किया, और फिर आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे इफ नॉट नाउ देन व्हेन, कि अगर मैं अभी नहीं करूंगा तो मैं कब करूंगा। अगले सेकंड का तो पता है नहीं, तो करना है तो अभी करना है, वरना कभी नहीं। तो ये है जो मुझे कहना था, ये है पूरी एक सिनॉप्सिस ऑफ व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाट आई वाज डूइंग बिफोर। इसमें बहुत सारी और चीजें आती हैं, perfect, लेकिन more than perfect. दैट्स ऑल। Mashallah, mashallah. I was too mesmerizing when you speaking. मतलब मैं सुन ही रहा था आपकी बातें, और you cover whole everything which your life is an inspiring story. और मुझे लगता है कि शायद इसलिए मैं भी रिसेंटली क्लब हाउस पे था एंड समवन सेड फहद किदवाई को सुनने में मुझे बड़ा मजा आता है, बिकॉज व्हेन ही स्पीक ही हैज सो मच टू से, एंड वो इतना इंटरेस्टिंग बातें होती हैं उनकी कि फहद किदवाई को सुनना चाहिए। अच्छा, मेरा बहुत कम इत्तेफाक हुआ है क्लब हाउस पे आपको सुनने का, बिकॉज आई थिंक टाइम मैच नहीं हुआ होगा, बट वाह, आई थिंक आपने सब कवर कर लिया। बट कुछ जो सवाल है मेरा अगला सवाल आपसे होगा इसी कि when you speak and people listen, your लोग आप से मुतासिर होते हैं, और लोग आपको जब आपकी बातों से कुछ सीखते हैं या उसको अप्रिशिएट करते हैं, और जब उसको सीखते हुए वो उस पर अमल करते हैं और आप इंस्पायर करते हैं लोग, हाउ डू यू फील दैट इमोशंस, और आपने कहा कि किस तरह से उसको डील करते हैं? मेरा ये मानना है कि अगर मेरी स्टोरी से कोई इंस्पायर होता है तो मैं क्यों ना शेयर करूं। अगर मैं किसी किसी के लिए एक जरिया बन सकता हूं, मैं क्यों ना करूं। इसका ये मतलब नहीं कि आई एम प्राउड ऑफ व्हाट आई हैव डन और आई एम बोस्टिंग अबाउट माई सेल्फ। नो, आई डोंट सी इट इन दैट वे। मैं ये देखता हूं कि अगर मैं किसी को किसी चीज से बचा सकता हूं थ्रू माई एक्सपीरियंस, तो मैं क्यों ना करूं। फिर तो वो बंदा यही बोलेगा अपने आप से जब वो एक मंजिल पे पहुंच जाए कि काश मेरे जैसा कोई होता जो मुझे बता पाता जब मुझे नीड थी कि फलाना ढमकाना ऐसे होता है। बात तो वहीं पर आ गई ना कि फहद अपने आप से बोल रहा है उस टाइम पे, या अभी बोल रहा है कि काश फहद होता जब मैं स्टार्ट कर रहा था अपना करियर, मुझे बताने के लिए कि ये ऐसे किया जाता है, ऐसे नहीं। और वो चीज दिल को खुशी देती है। तो इसी वजह से जो मैंने आपको कोट, जो आपने कोट पहला पढ़ा था, मैं आपको रिआइट्रेट फिर से पढ़ता हूं। इफ यू हैव नॉट गिवन बैक
without an expectation. You need to understand the value of this, of what I'm saying. It's very deep, but yet so simple. Agreed, If you have not given back without an expectation, you are yet to witness the essence of true happiness. True happiness क्या होती है? आप चल रहे हैं सड़क पे, एक भिखारी बैठा है साइड में, उसकी प्रॉब्लम्स आपकी तरह नहीं है कि आपने अपना सबमिशन नहीं किया बॉस को, बॉस गुस्सा है. उसकी प्रॉब्लम्स ये नहीं है कि आपकी गाड़ी में स्टिकर नहीं लगा हुआ है, या आपका 85% नहीं 84%. उसका वो प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम क्या है? पानी पीने को नहीं है, खाना खाने को नहीं है. उसकी प्रॉब्लम भूख और प्यास है. तो आप अगर 10 रुपए अपनी जेब से निकाल कर उसे एक ठंडी पानी की बोतल दे सकते हैं, जब वो बंदा वो शायद स्माइल भी ना करें, लेकिन जो उसकी आंखें आपको जो उसकी आंखों में मुस्कुराहट होगी, वो आप एक बार देख लिए कि उससे बढ़कर दुनिया में कोई और खुशी होगी नहीं, ना हो सकती है. मैं ये कह रहा हूं. तो मैं अपनी खुशी के लिए हर चीज बताऊंगा. तो ये थे फ़हाद आपके साथ, और आई वुड लाइक टू थैंक फ़हाद कि वो मेरे शो में आया और मुझे टाइम दिया. बट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ हिज स्टोरी जो कि मुझे लगता था कि मुझे शेयर करना चाहिए. सो स्पॉटलाइट की एपिसोड 2 में आप फ़हाद की दुआई की ये स्टोरी सुन रहे हैं, और आपको आई होप मज़ा आया हो. थैंक यू सो मच. अगले एपिसोड तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. मैं वसीम और आपके साथ आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट. थैंक यू.